Hello once again to the biology online classes. So we have started a chapter which name is sexual reproduction in flowering plants. हम लोगों ने sexual reproduction in flowering plants start किया है. In the previous class we studied about the structure of a flower or what is the reproductive part of a plant. So we know that it is a flower. Now flower, why it is considered as a reproductive part of a plant? Because it constitutes the male and the female organs there. Male part and the female part is present in a flower. ये flower में ही present होता है. Like the male part is the androecium and the female part is the pistil or you can say the gynoecium. So we have seen that in the androecium, हम लोगों ने androecium को पढ़ाई किया था. That androecium is the male part जहाँ पे male gamete form होता है, like pollen grains form होते हैं. So that is the male gamete form होता है, and then it undergoes various changes and forms the pollen grains, and then it takes place in the process of sexual reproduction. ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने जो लास्ट में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, तो एंथर जब यंग स्टेज में था तब एंथर का कंडीशन क्या था, और जब एंथर मेच्योर होगा एट दैट टाइम एंथर का कंडीशन क्या होगा. तो वी हैव टेकन the cross section of the anther. Suppose we have seen that was the diagram of a stamen, right? So this one is the filament and this one is the anther. Now anther, we have taken the cross section of the anther. So when we have taken the cross section of the anther, we have seen this type of structure. So this is the first lobe and this is the second lobe. So we have seen that there are two lobes, first lobe and the second lobe, and in between there is a connective tissue. We have seen that पहला लोब है, second लोब है, उसके बाद connective tissues है, right? कि connective tissues जो था वो है sterile, जिसका कोई function नहीं होता because it could not take part in any type of reproduction. तो ये sterile होता है, ठीक है, but it is a connective tissue because it is separating the two thecas. हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली एंजियोस्पर्म्स में अगर हम एंथर को, दिस इज द एंथर का अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन अगर देखें तो यू विल फाइंड दैट देयर आर टू थेकास. दिस इज द फर्स्ट थेका एंड दिस इज द सेकंड थेका, एंड इन ईच थेका वी विल फाइंड देयर आर टू दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स which is known as microsporangium. It is known as microsporangium, but when the anther will be matured, at that time we are going to term it as a pollen sac. ठीक है, जहाँ पे pollen grain develop होता है. So at that time we are going to tell it a pollen sac, but right now we can tell it as a microsporangium. Now we have seen that this is the anther wall and this is the microsporangium. So anther wall and microsporangium के बीच there are some layers of cells, right? So there are some layers of cells. तो पहला लेयर्स ऑफ सेल्स जो था, एक था हमारे पास एपिडर्मिस जो कि फर्स्ट लेयर ऑफ सेल है, उसके बाद हमें मिला एंडोडर्मिस एंड उसके बाद हमें मिला मिडिल लेयर व्हिच आर ऑफ मेनी लेयर्स, 2 to 3 layers are present. After that a very important tissues we have get or very important type of cells we have get which is known as tapetum, and we know the function of tapetum. tapetum का function क्या था? It is responsible for the production of an enzyme which is known as callase, जिसका नाम है callase. तो ये callase फॉर्म करता है एंड और क्या करता है टेपेटम? ये न्यूट्रिशन, ठीक है, ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. किसको प्रोवाइड करता है? जो कि हमारा डेवलपिंग या फिर फ्यूचर जो हमारा माइक्रोस्पोर होगा या फिर फ्यूचर जो पॉलन ग्रेन होगा उसको डेवलप करने के लिए एनर्जी चाहिए होगा, फूड चाहिए होगा, न्यूट्रिशन चाहिए होगा. तो वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? इट इज प्रोवाइडेड बाय द tapetum. Now tapetum also contain a very special bodies which is known as Ubish bodies. ठीक है, Ubish bodies कहा जाता है, जिसका जो अगर आप ताल्लुकात देखो कि ये एक केमिकल सिक्रेट करता है और ये केमिकल का नाम है स्पोरोपोलेनिन. It is known as sporopollenin, right? It is known as sporopollenin. So this is the most resistant chemical which is secreted by chemical tapetum, और ये जो केमिकल है ये सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट है इन द एंटायर लिविंग वर्ल्ड. इस ये ऐसा केमिकल है अगर आप इससे एसिड भी डाल दो, अगर आप इसमें एल्कलाइन मीडियम, कुछ भी हाई टेम्परेचर वट एवर आप उसमें कुछ भी एक्सट्रीम कंडीशन में डाल दोगे तो भी ये
जो केमिकल है, ये केमिकल कभी भी यू कैन से इसको कोई बीट नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट केमिकल है, ठीक है। तो इसका भी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। तो टेपेटाम ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फंक्शन इज इट प्रोड्यूसेस एन एंजाइम विच इज नोन एज कैलेज, और कैलेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हम आगे देखेंगे। सेकेंड जो है ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है, जो कि हमारे डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एंड थर्ड वन, इट इज having a special type of body which is known as Ubish bodies, and which is responsible for the formation of a chemical compound which is known as sporopollenin, and it is the most resistant chemical compound in the living world till now, ठीक है। अभी तक यही सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट केमिकल कंपाउंड है। तो नाउ लेट्स सी, उसके बाद जो अंदर हम ये जो राउंड राउंड सेल्स देख रहे हैं, व्हाट आर दे एक्चुअली? तो दिस आर स्मॉल स्पोर्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर which is known as archaesporal cells, right? इसको हम archaesporal cells कहते हैं, या फिर हम इसको sporogenous cells भी कहते हैं। My dear students, listen it very carefully. This cells, inside the cells, ये तो layer of cells था जो हमारा epidermis बनाया, anther wall को बनाया, this is the wall of the anther, and then we will find the pyramidal cell which is known as tapetum, and inside it you will find a compact cells, बहुत सारे cells एक साथ compact है। Now these compact cells are known as archaesporal cells, or they are known as sporogenous cells, इनका नाम है ये। Now this is the condition when the anther is in young condition, जब anther young condition में रहता है, ठीक है। Now when anther matures, अब anther mature हो रहा है, तो जब anther mature हो रहा है definitely there will be some changes, right? तो चेंजेस यहाँ पे क्या होगा, देखो ये सब जितने भी सेल्स है ये सब क्या होंगे, धीरे धीरे इट विल बिकम अ फाइब्रस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, देयर इट विल बिकम अ फाइब्रस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ परमानेंट सेल्स। तो ये फाइब्रस टाइप का स्ट्रक्चर होना शुरू कर देंगे, और यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरेंजियम का जो प्लेस है, इसको अब हम एंथर जो है हमारा मेच्योर हो गया, तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, नाउ वी विल टर्म इट एज अ पोलन सेक, राइट। अब हम इसको पोलन सेक कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर का जो आर्केस्पोरियल सेल्स या फिर स्पोरोजेनस सेल्स था वो क्या होगा, वो अभी इसका जो पोलन सेक है ये धीरे धीरे बड़ा होगा, एनलार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंथर वाल है वो अब फाइब्रस होना शुरू कर देगा। तो माइक्रोस्पोरेंजियम देखो ये अपना एरिया बढ़ा देगा, ठीक है। और अगर एक एरिया बढ़ा दिया तो इसके अंदर जो कॉम्पैक्ट जो था सेल्स, वो भी उसको भी जगह मिलने लगा खुलने के लिए, राइट। तो वो भी धीरे धीरे बड़े होने लगे और फैलने लगे, ठीक है। ऐसा हो गया कंडीशन व्हेन द एंथर इज नाउ मैच्योर। पहले ये यंग था, तो यंग में जो माइक्रोस्पोरेंजियम था इट वाज वेरी डेलिकेट, ये बहुत ही छोटा था, और यहाँ पे जो सेल्स थे वो बहुत ही कॉम्पैक्ट थे एक दूसरे के साथ। But when the anther is mature, there you will find that the space of the microsporangium is now a big one, and then the pollen जो microspores है यहाँ पे, या फिर जो हम स्पोर बोल रहे हैं, जो आर्केस्पोरियल सेल्स हमारा है, ये आर्केस्पोरियल सेल्स ये पूरा फैल रहा है। इसका जो कॉम्पैक्सिटी था, ये जो पहले कॉम्पैक्ट था ये अब कॉम्पैक्ट नहीं, ये पूरा खुल गया है। नाउ इट इज स्प्रेड ऑल ओवर द पोलन सेक, राइट। अब क्या होगा नेक्स्ट कंडीशन, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मेनी राइट, मेनी आर्केस्पोरियल सेल्स आर देयर। तो अभी हम बात करेंगे एक आर्केस्पोरियल सेल को अगर हम ले तो यहाँ से क्या डेवलप हो रहा है, ठीक है। नाउ वी विल सी, नाउ इस आर्केस्पोरियल सेल्स को अब हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। नाउ दिस आर्केस्पोरियल सेल इज टर्म्ड एज माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC, ठीक है। नाउ माइक्रोस्पोर मदर सेल ये हो गया, नाउ इट इज हैविंग इट्स न्यूक्लियस, राइट। नाउ दिस MMC विल अंडरगो, ये हर एक सेल में होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही में हो रहा है, ये हर एक सेल में हो रहा है, बट वी आर शोइंग ओनली वन सेल। तो आप समझ सकते हो कि कितना हर एक सेल्स में ऐसा ही होने वाला है, राइट। नाउ MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल, व्हाट इट विल डू, इट विल अंडरगो meiotic cell division. Now you know what is meiotic cell division and mitosis cell division. तो meiotic cell division में क्या होता है, the cell divide and forms 4 daughter nuclei, haploid daughter nuclei. तो exactly यहाँ पे भी यही होगा, यहाँ पे MMC will undergo meiosis and it will form 4 daughter nuclei, not this 4 but 1, 2, 3
and the next one is beside the circle. ये जो आपका next 1 2 3 और 4th वाला पीछे है, या फिर ऐसा टाइप का कुछ फॉर्म होगा 1 2 3 4, या फिर ऐसा या फिर ऐसा, दिस टाइप ऑफ डिवीजन हो गए. ये सब सेल्स एक ही साथ अटैच्ड रहेंगे, ठीक है, ये अटैच्ड रहेंगे, बट दीज आर एक्चुअली द सेल्स 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ हमने देखा है कि जब एमएमसी जब डिवाइड करता है तो डिवाइड करने के बाद आइदर दिस टाइप और दिस टाइप और दिस टाइप और दिस टाइप, इन चारों में से कोई एक टाइप का फॉर्म होता है. और बेसिकली जो एंजियोस्पर्म जो करते हैं वहां पे हम देखते हैं इस टाइप का माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्मेशन. तो दिस ऑल आर नोन एज माइक्रोस्पोर्स टेट्राड. टेट्राड मतलब 4 सेल्स, राइट. यहाँ पे 4 सेल्स का माइक्रोस्पोर फॉर्म हुआ है. और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड एक दूसरे के साथ क्या है, व्हाई दे आर फॉर्मिंग द टेट्राड, बिकॉज दे आर ज्वाइंट विथ ईच अदर. माइक्रोस्पोर्स क्या है, ये एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, ये एक अलग नहीं है. यहाँ पे हम देखेंगे ऐसे टाइप के. चलो हम फिर से यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहे हैं, एक ही को ड्रॉ कर रहे हैं. तो लेट्स सी, दिस टाइप ऑफ tetrad is found everywhere. Now the spores have been changed to the microspore tetrad. ठीक है, अभी ये टेट्राड बन गया. अब टेट्राड एक दूसरे के साथ ज्वाइंट, अभी ये माइक्रोस्पोर्स हुआ नहीं है. अभी ये क्या होगा, नाउ रिमेंबर टेपेटम मैंने बोला था ये कौन सा एंजाइम सिक्रेट करता है, ये कैलेज एंजाइम सिक्रेट करता है. ठीक है, तो ये कैलेज एंजाइम ये कौन सिक्रेट करता है, टेपेटम सिक्रेट करता है. और ये जो एक दूसरे के साथ जो सेल्स ज्वाइंट है वो ज्वाइंट किससे है, विथ कैलोज. ये ज्वाइंट है कैलोज से, एक केमिकल कंपाउंड. और टेपेटम क्या करता है, कैलेज फॉर्म करता है. तो कैलेज, इफ वी नो दैट अगर ASE सफिक्स में होता है दैट मीन्स इट इज एन एंजाइम, राइट. तो कैलेज क्या होगा, जो टेपेटम अब क्या करेगा, कैलेज सीक्रेट करेगा, जिसके कारण क्या होगा, जब कैलोज के साथ वो मिलेगा तो वो कैलोज को तोड़ देगा. और तोड़ने के बाद जो हमारा माइक्रोस्पोर्स थे, टेट्राड थे, अब वो अलग अलग हो जाएंगे. नाउ सी 1 2 3 4. नाउ ये जो 4 सेल्स थे वहां पे कैलेज ने एक्ट किया एंड फॉर दैट रीजन ये जो चारों सेल्स थे वो अलग हो गए. ठीक है, नाउ एट दिस कंडीशंस द दिस आर्केस्पोरियल सेल से जो हमने एमएमसी देखा, एमएमसी से हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ, माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस हुआ. नाउ स्टिल दिस इज नॉट योर pollen grain or you can say this is not your male gamete. ठीक है, यहाँ पे इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब the production of microspores or the method by which microspores are formed. तो माइक्रोस्पोर कैसे फॉर्म हुए, ये फॉर्म हुए when the anther mature and the archaeosporial cells get developed into microspore mother cell, and then the microspore mother cell undergoes meiotic division or meiotic cell division and it forms the microspore tetrad. Right, now microspore tetrad, when Kelly's enzyme acts on it, then it forms the microspores. यहाँ तक समझ में आने से this is known as microsporogenesis. Now after that what happens when we are going to get the pollen grain, हमको pollen grain कब मिलेगा. Now we will see that the microspore, this is the microspore, right. ये पहले हमारा कंडीशन था microspore, right. Now it will be layered by a cell. ठीक है, इसका एक सेल मेम्ब्रेन है obviously, उसके ऊपर का outer layer and inner layer will be there. Now the outer layer is known as exine and the inner layer is known as intine. So pollen grain is made up of 2 layers. The outer layer is known as exine and the inner layer is known as intine. Now ये जो exine है आप देखोगे, exine जो है वो ऐसे प्रेजेंट है, राइट. वो बहुत ही थिक लेयर का होता है. exine जो आउटर लेयर जो फॉर्म होता है माइक्रोस्पोर्स में, यहाँ पे बहुत ही थिक लेयर का होता है. और ये जो थिक लेयर है वो बना हुआ किससे है, स्पोरोपोलेनिन से, जो हमें कहाँ पे मिला था, अगेन इन द टेपेटम. क्योंकि टेपेटम में ऐसा उबिश बॉडी रहता है जिसमें आपका स्पोरोपोलेनिन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो यहाँ पे वी विल सी दैट दिस स्पोरोपोलेनिन गेट इनटू द आउटर साइड ऑफ द और इन द आउटर लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोर्स. तो ये आउटर लेयर किससे बनता है, स्पोरोपोलेनिन से बनता है, विच इज नोन एज एक्साइन. एंड इनर लेयर it is known as intine and it is made up of cellulose and pectin. We know it, right. So cellulose and pectin, but the outer layer is very very important. It is made up of sporopollenin.
Now this structure is known as pollen grain. ठीक है, now this structure is known as pollen grain. अब हम उसको बोल सकते हैं pollen grain because पहले जब था वो सिर्फ माइक्रोस्पोर था, इसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं था. अब क्या हुआ, माइक्रोस्पोर्स के ऊपर एक कोटिंग आ गई, आउटर लेयर एंड इनर लेयर. ना आउटर लेयर को हम एक्साइन बोलते हैं which is made up of sporopollenin which is the most resistant compound and the inner layer is made up of cellulose and pectin. So now this is known as pollen grain. अभी तक हमें मेल गैमेट नहीं मिला है, राइट? अभी तक हमने देखा कि ये स्ट्रक्चर मिल गया हमें, बट वी हैव नॉट फाउंड द मेल गैमेट. नाउ सी हाउ द मेल गैमेट इज फॉर्म्ड. Now we will see that microgametogenesis. Now here we will see microgametogenesis where the male gamete will be formed. Now this is the pollen grain we have taken. This is the outer layer. आउटर लेयर को आप देखोगे कि ये रेगुलर नहीं है, ये कुछ कुछ जगह पे एब्सेंट होता है. ठीक है, इसका भी एक फंक्शन है, इसीलिए ये एब्सेंट है. ठीक है, और इनर लेयर पूरा रेगुलर होता है, सेलुलोज एंड पेक्टिन. नाउ वी नो दैट देयर इज अ न्यूक्लियस, राइट? नाउ दिस न्यूक्लियस विल अंडरगो karyokinesis. Now what do you mean by karyokinesis? So this is the process where nucleus divides, right? The process of division of nucleus. तो अभी क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा and the division will be unequal mitotic division. So the division will be unequal mitotic division, right? This will be unequal mitotic division. Now see here, two cells are formed, two nuclei are formed, 1 and 2. So this, the big one is known as vegetative cell or nuclei, and this one is known as generative cell, or you can say it is nuclei, right? So this one is vegetative cell or vegetative nuclei, and bigger one and the smaller one is generative cell or generative nuclei, right? क्योंकि ये बाद में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाएगा. अब देखोगे वेजिटेटिव सेल जो था, जो फॉर्म हुआ, इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब. वेजिटेटिव सेल से क्या फॉर्म होगा, पोलन ट्यूब फॉर्म होगा. नाउ हियर वी विल सी दैट ये हो गया हमारा पोलन ग्रेन एंड पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब और ये था हमारा स्पोरोपोलेनिन, राइट? तो यहां से फॉर्म होता है पोलन ट्यूब. तो पोलन ट्यूब कौन फॉर्म किया, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई ने फॉर्म किया. ठीक है, अंडरगो सेल डिवीजन. ये हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे व्हेन वी विल लर्न अबाउट द पोलन एंड पिस्टिल इंटरेक्शंस. देन यहाँ पे वेजिटेटिव सेल को कौन, वेजिटेटिव सेल से फॉर्म हुआ पोलन ट्यूब. नाउ व्हाट हैपेंस टू द जनरेटिव सेल. नाउ जनरेटिव सेल ये क्या करेगा, दिस इज द पोलन ग्रेन. नाउ जनरेटिव सेल क्या करेगा, ये वेजिटेटिव सेल अपना पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा और जनरेटिव सेल अगेन इट विल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन. ठीक है, और फिर से ये माइटोटिक डिवीजन करेगा, माइटोटिक डिवीजन, एंड देन you are going to get the structure like this. ठीक है, तो दिस इज द पोलन ग्रेन. तो ऊपर में आप लेयर ड्रॉ कर सकते हैं, एंड देन दिस आर द टू न्यूक्लियाई विच इज रिजल्टिंग फ्रॉम द जनरेटिव सेल. जनरेटिव न्यूक्लियाई जो था वो डिवाइड करके फिर से एक बार माइटोटिक डिवीजन करता है, जिसके कारण दो न्यूक्लियाई और भी फॉर्म होते हैं, और इन न्यूक्लियाई का नाम है मेल गैमेट्स. नाउ दिस इज आवर मेल गैमेट विच वी आर सर्चिंग फॉर. यहां पे होता है गैमेट का फॉर्मेशन, राइट? तो दिस इज मेल गैमेट.
और जनरेटिव सेल ने ये कहां से फॉर्म हुआ, जनरेटिव सेल से फॉर्म हुआ. दिस इज नोन एज मेल गैमेट. तो हाउ मेनी मेल गैमेट्स आर फॉर्म, दिस क्वेश्चन इज ऑफनली आस्क्ड कि हाउ मेनी मेल गैमेट्स आर फॉर्म in case of plant. So it is 2 male gamete and it is formed from where, it is formed from the generative cell. So what is the function of the vegetative cell, vegetative cell function is to give rise to the pollen tube. ठीक है, जो उसको pollination में, fertilization में help करेगा. We will see when we will see the fertilization process in case of plant, right? So this is the entire process of माइक्रोगैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस में हम लोगों ने क्या देखा, पोलन ग्रेन मैच्योर हुआ. दैट मीन्स यहाँ पे जो पोलन ग्रेन के अंदर जो न्यूक्लियाई था, इट हैड अंडरगोन अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन. एज अ रिजल्ट इट इज गोइंग टू फॉर्म 2 टाइप ऑफ सेल, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल. नाउ द वेजिटेटिव सेल results in the formation of the pollen tube, and the generative cell again it will undergo mitotic division to form the 2 male pronuclei or nuclei, you can say, and this is termed as male gamete. So here we are going to end the topic now, that microsporogenesis and microgametogenesis. So once more, let me summarize how we have seen that microspores are how they are formed. They are formed because of the this areas. Now see, this is the area where we have seen this is the tapetum, and inside the tapetum archesporial cells were present. It is the condition when the anther was in young condition. Now when the anther matures, this that microsporangium undergoes aerial changes, right? यहाँ पे आप देखोगे एरिया में surface area उसका बढ़ गया, it matures, and then the archesporial cells which are present there, it also got some position or some places to survive, right? यहाँ पे वो कुछ space उसको मिल गया. Now this here this again gets converted into microspore mother cell, and then microspore mother cell undergo meiotic division to form the microspores tetrad, and after the tetrad is formed, it is treated with the Callis enzyme, and we will see that microspores are formed, and then the microspores is coated with the exine and the intine. Exine is made up, the outer layer is made up of sporopollenin, which is known as exine, and the inner layer, which is known as intine, it is made up of cellulose and pectin. After that, the pollen grain undergoes again the karyokinesis, that means the division of the nucleus, and this division of the nucleus is unequal. So one is bigger cell and the other is the smaller cell. So the first bigger cell will give rise to pollen tube, which is known as vegetative cell, and the second one, which is known as generative cell, it gives rise to the male gamete. So again, see, this is a generative cell which gives rise to the male gamete, and ultimately we are going to see the male gamete. So how many male gametes are formed? Here we will see there are 2 male gametes which are formed. 2 male gametes are formed in case of plant. This is very, very important question. So in the next class we will learn about the megasporogenesis and megagametogenesis. That means about the female reproductive part of a plant. This is, we have learned about the male reproductive part, that is about the endoecium or the stamen. Next class में हम पढ़ेंगे about the female reproductive system of a plant. So thank you and have a nice day.